Hi everyone, welcome to Luminary Academy children, and today we are solving a question which is based on distance, time and algebra. So here you can see that two concepts are asked in one question, and this is a question which is based on past paper. So here Martha walks a distance of 10 kilometers. So if we visualize this, I have to draw a diagram. So this is a distance which she is walking, and there is a distance which she is running. So she runs and walks. So there are two important things, and she walks 5 kilometer. She runs 5 kilometer and walk 10 kilometer. So 10 kilometer is this distance and 5 kilometer is this distance. She is running here and she is walking here, right children? Now here what we need to do is we need to see the distance is given to you 10 and 5 kilometers, and the speed when she is walking is x. So this is a distance and this is the speed, x kilometer per hour. Here this is the distance and the speed is x plus 4. Sorry, I'll write it properly. It will be x plus 4 kilometer per hour, right children? So this is given to you. Now the concept here is that you know that distance is equals to speed into time, right? Now if I need to find time, so distance upon speed is time, right? So if I do this question, I'll use this space, then I'll erase it later. So here the time will be, time is equals to distance upon speed, and here I'll call it as t1, and here the time will be t2, that is distance upon speed. So here the distance is 10 kilometer, speed is x. Here the distance is 5 kilometer and the speed is x plus 4 kilometer, right? Now they're saying that first question, write down an expression in terms of x for the time Martha is walking. So for time, right, for time we have already calculated, and we need to find this, we need to write this expression, that is 10 upon x. So this is your answer for the A part. Now if I want to solve B part, I need to use these two equations. So I'll erase, so I'll not erase, I'll change the pen. So I'm doing the B part here. What we need to do is show that 7x square minus 2x minus 80 is the equal to 0. अब आपको show कैसे करना है? So you know that you need to read whole question here. Here it is written that the total time taken by the whole journey by Martha for the whole journey is 2.5 hour. So the concept here is that आपका जो total time लगा है T1 और T2 में, that is 3.5 hour. So T1 की वैल्यू आप कहाँ रखोगे? यहाँ पर. T2 की वैल्यू आप कहाँ रखोगे? यहाँ पर. और बन जाएगी इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत आसान है. सो आप क्या करोगे? 10 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 3.5. अगर आपको पॉइंट में प्रॉब्लम आती है, यू कैन जस्ट रिमूव द पॉइंट हटाओगे 35 अपॉन 10 आ जाएगा. यू कैन कट इट विद द हेल्प ऑफ 5. सो 5 टाइम्स 7 एंड 5 टाइम्स 2, राइट, कट हो गया. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3.5 अपॉन 10, you can just write 7 upon 2, and then you can write 10 upon x plus 5 upon x plus 4, right? अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है पूरा, ताकि आप इस फॉर्म में लेके आ सको. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको इसके लिए इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है. सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट सो दैट यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड चेक व्हाट वी हैव डन, एंड I'll try to finish it in this space. So I'm doing the next question, that is this part here. I'll do it here, right? Now here it is written that 10 upon x plus 5 upon x plus 4 is equals to 7 upon 2. This was the equation. Now what we need to do is we need to take the LCM. So if I take the LCM, I'll multiply divide x plus 4 here also, and I'll multiply divide x here also. यहाँ पर एलसीएम लेना बहुत जरूरी है, वरना हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ नहीं सकते. सो इफ आई टेक द एलसीएम, इट विल बी 10x प्लस 4 प्लस 5x, क्योंकि 5 इंटू एक्स इज 5x, अपॉन नीचे एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4, एंड दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 2. राइट चिल्ड्रन, वेरी इजी. अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इसको तो भेजना है, इसको तो भेजना है. तो हम क्या करेंगे? अब इसको तो भेजेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. 10x प्लस 40, 10x प्लस 40 प्लस 5x अपॉन, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 2. 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 7 नीचे, 4x स्क्वायर प्लस 4x ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा. सो हम इसको डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर देंगे, तो 2 उधर मल्टीप्लाई होगा,
उससे पहले हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 15x प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 2, right? And this will become 7 multiplied by x square plus 4x. Done, children? Now I need to erase this line. Now जगह बहुत कम पड़ गई, क्या कर सकते हैं? Now I'm changing the color, so it is 30x plus 80 is equals to 7x square plus 7 4s are 28, 28x. तो हमने क्या किया, हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ताकि इक्वेशन फॉर्म हो गई. अब सबको एक तरफ ले लो, इन सबको इधर भेज दो. सो बाय दैट वे 0 विल बी हियर एंड आई विल राइट 7x स्क्वायर प्लस 28x. अब इधर जाएगा तो ये माइनस 30x और माइनस 80. राइट चिल्ड्रन? अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो. सो दिस विल गिव यू आंसर एज 0 इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80. अब आपको चेक करना है कि आपने जो आंसर निकाला और ये जो आंसर है वो सेम है कि नहीं. यस, इट इज ऑफ कोर्स सेम. सो आई थिंक ये 2 से 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. वेरी इजी. आई होप यू गॉट द ट्रिक. बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं इसमें IGCSE पास पेपर्स में. तो आपको जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा. अगर नहीं करोगे तो आपको पता ही है चिल्ड्रन कि ये पूरे 4 मार्क्स आपके गए, क्योंकि आप इसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, विच इज T1 T2 वाला कॉन्सेप्ट. एंड कौन सा कॉन्सेप्ट? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का कॉन्सेप्ट. ये 2 कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तभी जाके आप इसको सही कर पाओगे. आई होप यू लाइक दिस आइडिया. नाउ लेट्स सॉल्व इट फर्दर. अब हम आगे बढ़ेंगे. अब आपको सेम क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ पर सी पार्ट है इसका. वो ये बोल रहा है कि यहां पर सी पार्ट है, सॉल्व दिस इक्वेशन. अब आपको इस इक्वेशन सॉल्व करनी है. गिव योर आंसर टू करेक्ट टू 2 DP, यू मस्ट शो ऑल योर वर्किंग. अब यहां पर आपके कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आपको क्या करना है, आपको 1 या 2 स्टेप बतानी है. कैसे बतानी है? आपको पता है कि इस इक्वेशन में 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 इसमें इक्वल्स टू 0. इसमें a क्या है आपका? दिस इज योर a, दिस इज योर, सॉरी नॉट दिस, the whole this part is your b and this is your c part. Sorry, again the whole c with the sign also you need to take, so you need to include the sign also. So अगर मैं इसको लिखूं तो a आएगा यहाँ पर 7, b आएगा -2, c आएगा यहाँ पर -80. अब आपको करना क्या होता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार शो करना होता है. कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सॉरी, अब आपको करना क्या होता है यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को शो करना होता है. दैट इज x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाना पड़ेगा. तो हम अगर लगाते हैं इसको तो यहाँ पर x आएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस b कितना है, -2, राइट, एंड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 7 एंड c कितना है -80, ये लगेगा, अपॉन 2 इंटू a कितना है 7, ये लगेगा. जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल गिव यू एज x इक्वल्स टू +2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये माइनस बन के बन जाएगा प्लस. सो ये हो जाएगा प्लस एंड आपको जब मल्टीप्लाई करोगे 7 4s are 28, वी नीड टू डू यूज कैलकुलेटर हियर एंड इट इज 4 इंटू 7 इंटू 80, दैट इज 2240 अपॉन 7 2s are 14. बस अब आप उसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो. अब आपको पता है कैलकुलेटर में सॉल्व कैसे करना है. कैलकुलेटर में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx 9n1 ex के अंदर आपके अंदर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है. अगर हम उसको उस कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो अभी मैं करके देख लेता हूँ. तो चिल्ड्रन जब आप कैलकुलेटर में इसको रख के वैल्यू चेक करोगे तो आपके पास 2 आंसर आएंगे. एक आएगा -3.240 एंड एक आएगा 3.526, राइट. सो आपको यहाँ पे लिखा है 2 DP. 2 DP के अंदर आप क्या करोगे, इसको डेसिमल प्लेस पे, तो इट इज 3. हम इसको लिखेंगे 3.53. सो दिस इज योर आंसर. दिस 2 नेगेटिव वैल्यू विल नॉट टेक, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है. सो हम ये वाली वैल्यू लेंगे एंड दैट इज योर आंसर. नाउ लेट्स डू द डी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन व्हिच वी आर फॉलोइंग. So in the D part, the question is same. They're asking that calculate the difference between the time Martha is walking and the time she is running, right?
give your answer in hour and minute to correct to the nearest minute, right? Very simple. Now what we need to do is, हमको, आपने अगर पहले क्वेश्चन ध्यान समझा होगा तो I have written T1 and T2, दोनों का टाइम निकाल लेते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? दोनों का टाइम का डिफरेंस, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे. सो अब यहाँ पर टाइम का निकालने के लिए क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो हमने डिस्टेंस लिया था कितना इसका? 10 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी थी? x. सिमिलरली T2 का हमने डिस्टेंस लिया था 5 और उसकी स्पीड थी x + 4, राइट? अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और हमने x की वैल्यू अभी फाइंड करी थी, दैट इज 3.53. इससे पहले वाले सी पार्ट के अंदर वही हमको यहाँ पर यूज करनी है. तो T1 माइनस T2 करेंगे हम, दैट इज 10 अपॉन x माइनस 5 अपॉन x + 4. अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको ये x की वैल्यू यहाँ भी पुट करनी है और यहाँ भी पुट करनी है. जब आप ऐसा करोगे तो आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा. यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड है. तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 3.53, देन आई विल राइट सब्ट्रैक्ट 5 डिवाइडेड बाय x + 4. सो इट इज 5 डिवाइडेड बाय x + 4. x की जगह हम रखेंगे 3.53, उसमें 4 ऐड करेंगे 7.53. तो आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा दैट इज 2.19, राउंड ऑफ करने के बाद 2.19, राइट? 2.17, सॉरी 2.17, राउंड ऑफ करने पे इट विल बी 2.17. सो 2.17 इट इज इन आर, राइट? तो आपको ये पता करना है कि हम आर तो ठीक है 2r, तो हम रखेंगे 2r, बट मिनट में कितना आएगा? यहाँ पर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आपको कुछ नहीं करना होता, मिनट को आर में, मिनट को इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इट इज 0.17 आर, इट इज मल्टीप्लाई बाय 60. तो 0.17 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होता है? 0.17 मल्टीप्लाई बाय 60, इट इज अराउंड 10 मिनट, राइट? तो आपका आंसर आएगा 2 hours and 10 minutes is the difference between the time. So I hope this question was very easy for you, and अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में हो पाएंगे, अदरवाइज ये एग्जाम में क्लिक करना बहुत मुश्किल होता है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल. जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के आई विल बी डूइंग ऑन हियर. एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आप मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हो. So that is Rao Manaswi Singh, and if you want to subscribe my Instagram, it is Luminary Academy. So I hope you like this video. Thank you and keep watching.